Hello student, welcome you back in this physics video. Today we will learn how to write position vector and displacement vector in 3 dimension. So student, in previous video we come to know the position vector and displacement of 2 dimensions. So there we were having one, it is x-axis, there second it was y-axis, and the position was between x and y. So the coordinates were there, x and y. So here this x-axis we have taken it with that I unit vector, and the direction along y-axis this is given by this j unit vector. Therefore the position vector then it was the position vector xi unit vector plus yj unit vector, and the resultant become over there square of x, square of y, add them and take the square root. Okay, so this was that position in plane. Now we are talking of about this that position in 3 dimension. Those 3 dimensions we are having the 3 axes. Now the position of the particle it is given by the 3 coordinate x, y and z. So how we will write its position vector? So position vector then this will be equal to, so its position in x-axis. So the direction of x-axis is given by I unit vector. The direction of y-axis is given by j unit vector, and the direction of z-axis is given by k unit vector. Okay, so here that x is that magnitude toward x-axis. So therefore x is a magnitude toward x-axis. So magnitude into direction, plus y is the magnitude in y direction. So therefore it is y j unit vector, and z is a magnitude in a z axis. So there it is z k unit vector. Okay, so this is that position vector in 3 dimension in space. And if we have to find out its magnitude, so magnitude will be square of x plus square of y plus square of z, and its whole unroot. This will be the magnitude of that position vector. Now let us to learn over here. In case of that plane, we discuss over there how do we write this displacement. So we were having this was origin, and the body moves from P to Q. When it was at P, so its position vector was r1, and position coordinates were x1, y1. And when it shifted to that Q, so that time its position vector becomes r2, and now the position coordinates are x2 and y2. So therefore r1 position vector, how we will write it? So it is x1 I plus y1 j. Okay, and there r2, how we will write this one? So r2 it is a position of q. So this will be over there x2 I unit वेक्टर प्लस y2 j यूनिट वेक्टर. ठीक है, क्योंकि y1 और y2 जो है उसकी पोजीशन y एक्सिस में शो कर रहा है, और x1 और x2 उसकी पोजीशन अलॉन्ग x एक्सिस शो कर रहे हैं. ओके, सो दैट्स डिस्प्लेसमेंट. तो p से ये q कितना जाता है? सो इट इज़ गिवन बाय फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. So that it is x2 minus x1 I unit vector, because both are in x-axis, and plus of y2 minus y1 j unit vector. Okay, this was the displacement in 2 dimension. Now let us to learn this one in the case of 3 dimension. So in case of 3 dimension, this position of p, it is given by the 3 coordinate, which is x1 y1 z1. Okay, so therefore the position vector of this p is given by r1, and there it can be written as r1 is equal to, as we come to know from there, तो जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है इन एक्स एक्सिस इट इज़ x1, y एक्सिस में हो जाता है ये y1, और z एक्सिस में है हमारे पास दिस इज़ z1. ओके, दिस इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ p, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस q, तो ये क्या करता है p से q की तरफ जाता है, तो इसलिए q की पोजीशन वेक्टर क्या बनेंगे? तो q के कोऑर्डिनेट क्या हैं? x2 y2 z2. So it is x2 I unit vector plus y2 j unit vector plus z2 k unit vector. This will be over there. Therefore displacement, तो displacement क्या होगी? Final position vector minus initial position vector, and which is equal to, so you will see over there final यानी कि r2 minus r1.
ठीक है। तो इसमें जो सेम डायरेक्शन में जो वेक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ऐड अप हो जाएंगे। लेकिन x2 यहाँ पे प्लस का है और नेगेटिव आ जाएगा x1 के साथ, तो इसलिए x2 माइनस x1 दिस इज अलॉन्ग x एक्सिस, एंड देयर आफ्टर y2 माइनस y1 दिस इज अलॉन्ग दैट j अलॉन्ग y एक्सिस, एंड प्लस ऑफ z2 माइनस z1 दिस इज अलॉन्ग z एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 डायमेंशन में जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज़ रिटन इन आई, जे एंड के फॉर्म। ठीक है, सो दैट्स दिस इज द वे टू नोट डाउन द पोजीशन वेक्टर इन डिस्प्लेसमेंट in 3 dimension, and the magnitude of this displacement, that how it will be written over here. So the displacement, it is pq vector का magnitude which is equal to under root of square of that term which is along with the I unit vector plus square of that term which is along with the j unit vector plus square of the term which is along with that k unit vector. So there it is the magnitude of that displacement in 3 dimension. Now let us to learn over here that it is the application of resolution of vector. तो जो हमारे पास वेक्टर है उसको डिवाइड करके जो हमारे पास कुछ एक कंडीशंस हैं उनको ईजिली एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, so now let us to learn over here these conditions. So first that we are going to learn over here why it is easier to pull than to push a lawn roller. ठीक है, तो जो हमारे पास जैसे क्रिकेट की पिच होती है तो उसके ऊपर एक रोलर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये जो रोलर है उसको पुल करना आसान है लेकिन पुश करना इसको हार्ड है। ठीक है, सो हाउ you can explain it? So this is with the help of resolution of vector we are going to explain. So for this purpose let us to consider over here this is a lawn roller. ये हमारे पास रोलर है। ठीक है, and there is this handle, there is the handle of this roller. ठीक है, so first case that I am taking this one, it is for pull, that we are going to give a pull. ठीक है, तो पुल है इसका मतलब ये रोलर आप क्या करोगे, यहाँ पर हैंडल से फोर्स, ये हैंडल है इसका। ठीक है, तो इसलिए फोर्स किस तरफ लगानी है आपने यहाँ पर, टू पुल इट। ठीक है, तो इस तरह से ये जो फोर्स है वो आप यूज़ करोगे। ठीक है, सो ओवर हेयर ये जो फोर्स है दिस वी आर गोइंग टू अप्लाई एट एन एंगल। ठीक है, तो ये क्या हो रही है, जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना रही है। सो दिस इज दैट एंगल विच इज़ ओवर हेयर। ओके, सो वी आर नोन ओवर हेयर कि ये जो गिवन वेक्टर है उसको उसके 2 कंपोनेंट में, जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है उसमें हम ब्रेकअप कर सकते हैं। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। तो इसलिए हमारे पास वो कंपोनेंट जो जिसके साथ ये एंगल थीटा बन रहा है वो कौन सा होता है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे लिखा गया, एफ कॉस थीटा। ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर जो दूसरा, क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होते हैं, वो 2 कंपोनेंट जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो दूसरा कंपोनेंट होगा दिस विल बी परपेंडिकुलर टू इट। तो ये हमारे पास दूसरा कंपोनेंट। ठीक है, सो दिस सेकेंड कंपोनेंट देन व्हाट इट विल बी, इट इज एफ साइन थीटा। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास आया। ठीक है, तो जो हमारे पास अप्लाइड फोर्स है उस अप्लाइड फोर्स को हमने क्या किया, 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। सो वन कंपोनेंट दैट इट इज एफ कॉस थीटा एंड द सेकेंड कंपोनेंट विच इज ओवर हेयर इट इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, सो दिस इज एफ साइन थीटा। ओके, नाउ एज दिस रोलर इज हैविंग इट्स ओन वेट, इस रोलर का अपना जो टोटल वेट है वो किस तरफ एक्ट करता है, सो दिस टोटल वेट इट एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, सो नाउ वन थिंग दैट ऑल वी हैव टू नोटिस ओवर हेयर दैट ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इस कंपोनेंट की वजह से क्या होगा, ये जो रोलर है ये क्या करेगा, इस ग्राउंड पे रोल होकर के हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट दैट आई एम गोइंग टू राइट ओवर हेयर, और एफ कॉस थीटा मेक्स द रोलर टू मूव हॉरिजॉन्टली। ठीक है,
मीन्स टू से ओवर देयर जब फोर्स एक एंगल के ऊपर लग रही है तो सारी की सारी फोर्स उसको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस नहीं कर रही, ठीक है। अ पार्ट ऑफ फोर्स इज डिस्प्लेसिंग इट हॉरिजॉन्टली, तो वो फोर्स जो इसको हॉरिजॉन्टली लेकर के जा रही है वो कितनी है, एफ कॉस थीटा है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट उस रोलर को दे रही है। एंड दैट सेकेंड फोर्स component which is f sin theta, so it is acting vertically upward but just opposite to this weight। तो ये क्या हो रहा है, वेट के बिल्कुल अपोजिट में एक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ ये जो एफ साइन थीटा है ये किस तरफ लग रहा है, अपवर्ड की डायरेक्शन में, और जो वेट है वो किस तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट उस रोलर का क्या कर रहा है, वेट रिड्यूस कर रहा है। यू विल फाइंड ये फोर्स क्या कर रही है, उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उस रोलर का वेट किस तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड में जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर जो नेट वेट है सेकंड पार्ट में, जो नेट वेट हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है उस रोलर का, सो वी विल सी दैट दिस विल बी इक्वल टू दैट एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। तो वेट नीचे की तरफ लग रहा है, एफ साइन थीटा जो फोर्स का पार्ट है वो उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर जो नेट वेट है वो एक्चुअल वेट से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। सो दैट मीन्स दिस पुल विल बिकम ईजियर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, जो वेट है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है इन पुलिंग, ठीक है। तो जब हम पुल कर रहे हैं तो उस वक्त वेट क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। क्यों रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि अ पार्ट ऑफ फोर्स दैट एक्ट वर्टिकली अपवर्ड विच इज़ इन अपोजिट टू दैट वेट, तो इसलिए ये क्या कर रहा है, ये जो थोड़ा सा फोर्स का पार्ट है वो वेट को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। सो देयरफॉर पुलिंग बिकम्स ईजियर। नाउ लेट अस टू लुक ओवर हियर व्हाइल वी आर गोइंग टू पुश। तो सेकंड केस हम बात करते हैं, पुश करेंगे तो हमारे पास हाउ वी विल प्रूव दैट दिस विल बी हार्डर फॉर अस टू पुश द रोलर। So this is the roller and here it is the center of this roller and this is that handle, ये हमारे पास हैंडल लग गया। Now we have to push it, पुश करना है, इसका मतलब आपको यहाँ से पुश करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ से ये फोर्स आप इस तरह से अप्लाई करोगे, दिस इज द फोर्स यू विल अप्लाई, ठीक है। तो पुश करना है तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, ये रिजल्टेंट फोर्स दिस इज अप्लाइड बाय अस, ठीक है। एंड ओवर देयर ये जो रिजल्टेंट फोर्स है इसको हमने क्या किया, इसके दो कंपोनेंट में डिवाइड किया। सो वन इट इज़ ओवर देयर और ये जो सेकंड है वो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिए हमने इसके, ठीक है। सो देयर इट इज़ टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। नाउ ओवर हियर वी विल फाइंड ये जो फोर्स थी वो हम क्या कर रहे थे, इस हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल के ऊपर अप्लाई कर रहे थे, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल हो जाएंगे वर्टिकल अपोजिट। वर्टिकल अपोजिट होने से हमारे पास इस फोर्स का ये कौन सा कंपोनेंट बनेगा, सो वी आर लुकिंग दैट दिस एंगल, तो ये फोर्स एंगल इस कंपोनेंट के साथ बना रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसका एफ कॉस थीटा बनेगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एंड ओवर हियर इसका वर्टिकल कंपोनेंट किस तरफ चला गया, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट आया नीचे की तरफ, यानी कि एफ साइन थीटा, दिस वर्टिकल कंपोनेंट इज एक्टिंग डाउनवर्ड। लेकिन इस रोलर का अपना वेट भी किस तरफ लग रहा था, दैट वाज एक्टिंग इन डाउनवर्ड, तो इसका अपना वेट भी किस तरफ हो रहा था, नीचे की तरफ ही लग रहा था, ठीक है। सो अगेन वी विल सी दैट जब हम पुश कर रहे हैं तो ये आगे की तरफ जो है वो किसकी वजह से चलने वाला है, एफ कॉस थीटा। ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या करेगा, रोलर को आगे की तरफ लेकर के जाता है। बट ये जो एफ साइन थीटा है वो किसके साथ जुड़ रहा है, दिस इज गोइंग टू ऐड विद दैट वेट ऑफ द रोलर, ठीक है। तो जो हमारे पास क्या हो गया, नेट वेट वाइल वी आर पुशिंग, सो दिस बिकम्स एम जी प्लस दिस एफ साइन थीटा। हेयर वी आर एडिंग इट, इन दोनों को हम ऐड करें, क्यों ऐड कर रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसलिए सेम ऑर्डर में जो होगा वो क्या होगा, ऐड, और यहाँ पर जो अपोजिट ऑर्डर में था वो क्या हो रहा था, सब्ट्रैक्ट हो रहा था, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो नेट वेट है उस रोलर का वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। पहले कितना था एम जी, अब उसमें क्या हो रहा है,
अ पार्ट ऑफ फोर्स इज गोइंग टू ऐड, हमारी फोर्स का थोड़ा सा हिस्सा उसमें क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। सो दस वेट विल इंक्रीज। ठीक है, तो इसका मतलब जब पुश करेंगे तो ज़्यादा वेट हो जाएगा उस रोलर का, और जब पुल करेंगे तो उस वक्त उसका जो वेट है वो रिड्यूस हो जाता है। दैट्स वाई इट इज़ सेड दैट इट इज़ ईजियर टू पुश, sorry, it is easier to pull than to push the roller. There is one another beautiful example which is giving us related that uses of vector resolution. So it is walking of a man. Okay, so this is also can be explained with the help of this vector resolution. So while we are walking, so at that moment we are going to push this ground. So what we does, we push the ground in backward. So we are not applying over there downward force, we are applying backward direction that force. Okay, so this is that push which we are applying on the ground. Okay, in return what happens, जब हम ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली हमें क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट वहाँ पे रिएक्शन मिलता है. सो दस वी आर गेटिंग ओवर देयर, दिस इज that reaction which we are getting from that ground which is equal and opposite. So here ये जो push होता है this we are applying at an angle with the horizontal. तो ये जो पुश क्या किया हमने उस ग्राउंड के साथ एक एंगल के ऊपर अप्लाई करते हैं. ठीक है, सो दिस एंगल एंड दिस एंगल दैट विल बिकम अब वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो इसलिए ये थीटा बन गया. नाउ ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन के क्या बन जाएंगे, अब दो कंपोनेंट बन जाएंगे. ठीक है, तो रेजोल्यूशन करेंगे हम उस रिएक्शन का. दिस इज रिएक्शन ओवर हेयर विच इज प्रोवाइडेड बाय द ग्राउंड. सो दैट कंपोनेंट विच इज अलोंग द ग्राउंड इट विल बी इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो बन जाएगा आर कॉस थीटा. एंड दैट कंपोनेंट विच विल बी वर्टिकली अपोजिट एंड परपेंडिकुलर टू इट, तो जो दूसरा कंपोनेंट है वो कौन सा हो जाएगा, दिस इज आर साइन थीटा. ओके, सो दीज आर द टू कंपोनेंट ऑफ दिस रिएक्शन. तो आर कॉस थीटा बन गया हमारे पास, दिस इज हॉरिजॉन्टल. सो यू विल फाइंड ओवर हेयर ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो किस तरफ चल रहा है, किस तरफ एक्ट कर रहा है, जिस तरफ हम मूव कर रहे हैं. इसका मतलब जो फॉरवर्ड जो हॉरिजॉन्टल मोशन होगा दिस इज ड्यू टू ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. ठीक है, सो इट हेल्प्स टू मूव हॉरिजॉन्टली. तो ये हॉरिजॉन्टली हमारे जो हमें आगे चलने में हेल्प करता है. ओके, नाउ द सेकंड थिंग दैट विच वी आर लुकिंग ओवर हेयर, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट. तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है आर साइन थीटा, व्हाट इट विल डू, सो वी विल फाइंड दैट while we are walking, so at that moment we are keeping our whole weight over here. ठीक है, तो हमारा जो टोटल वेट है, तो टोटल जो वेट है वो हमेशा किस तरफ होता है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर जो वेट है वो डाउनवर्ड में एक्ट कर रहा है. सो वी आर लुकिंग ओवर देयर, तो जितना भी हमारा जो वेट है दिस विल बी बैलेंस्ड बाई दैट आर साइन थीटा बैलेंसेस आवर वेट. ठीक है, तो जो हमारे पास हम कैसे चल पाते हैं. ठीक है, तो हमारा वेट जो है वो कौन बैलेंस कर रहा होता है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमारे वेट को बैलेंस कर रहा होता है, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उस रिएक्शन का वो हमें फॉरवर्ड चलने में हेल्प कर रहा होता है. वी कैन आल्सो स्प्लिट दिस वन, ये जो फोर्स जो हमने पुश लगाया था उसको भी हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं. सो वन दिस विल बी एफ कॉस थीटा एंड सेकंड विल बी f sin theta. So f cos theta you can split it over here, it is f cos theta will be this one and f sin theta that side will come. ठीक है, तो हमारे पास ये जो r cos theta और f cos theta है ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास इक्वल होता है. ठीक है, तो यहाँ पर r cos theta और f cos theta they have their equal magnitude, and while this r sin theta and this that of f sin theta they have their equal magnitude. So thus we get over here ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है रिएक्शन का वो हमें हमारे वेट को बैलेंस करता है, जिसकी वजह से हम गिरते नहीं हैं, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें फॉरवर्ड मूव करने में हेल्प करता है. ओके, so thus we come to learn over here the application of resolution of vector. Thanks for watching this video. Stay tuned.